Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Noor School and College Mansehra. I'm your teacher Muhammad Awais Kashmiri. Dear students, as you know that we are discussing tenses. In previous two lectures, we have discussed tenses. First, we discussed the basic concepts of tenses and then we discussed continuous tenses and perfect tenses. So today I am going to repeat the previous lecture for you as well, and we'll move toward the perfect continuous tenses. So as you know that tense is a form of verb which tells us time. Tense is a form of verb which tells time. Uh, we in total we have five tensed forms: first form, second form, third form, ing form, and ses form. For example, go is first form, went is second form, gone is third form, going is ing form, and goes is es form of go. So what are the basic concepts? Indefinite means which does not tell you definite time, and continuous means something in progress. Perfect means something has been completed recently, and perfect continuous means something has been completed and something is in progress. Then identification in Urdu, as we have learned that in indefinite tenses we have ta hai, ti hai, te hain. In in past indefinite alaf, choti ye, badi ye, and in future indefinite ga, gi, ge. And in present continuous रहा है, रही है, रहे हैं. इन पास्ट कंटिन्यूस रहा था, रही थी, रहे थे. एंड इन फ्यूचर कंटिन्यूस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रहा होगा. एंड इन परफेक्ट टेंसेज, इन प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं और लिया है. वो खाना खा चुका है और उसने खाना खा लिया है. एंड इन पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे और लिया था. फॉर एग्जाम्पल, उसने खाना खा लिया था और वो खाना खा चुका था. एंड इन फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, लिया होगा और चुके होंगे, चुकी होगी, etc. And today we will discuss perfect continuous tenses, and I'll tell you what are the identifications of perfect continuous tenses. And the helping verbs. We have learned continuous tenses and perfect tenses. In continuous tenses, you know that is, am, are the helping verbs of present continuous, was, were are the helping verbs, are past continuous, and will be and shall be are the helping verbs of future continuous tense. And has and have are the helping verbs of present perfect, had is the helping verb of past perfect, and will have and shall have are the helping verbs of future perfect. And form of verb, main form. In all the continuous tenses take ing form. In total, you have 6 continuous tenses, and you have to know that all these take ing form. And perfect tenses take third form of verb. All the perfect tenses, whether it is present perfect, past perfect, or future perfect, all these take third form of the verb. So now we are moving towards perfect continuous tenses. Dear students, here are the perfect continuous tenses, and we start from present perfect continuous. Present perfect continuous. सो आपको पता होना चाहिए कि जब आपके सामने ये सेंटेंसेस उर्दू में आते हैं तो इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इनकी निशानी क्या होती है. या तो इनके आखिर में होता है डैश से रहा है या ता रहा है. फॉर एग्जांपल, वो वो रात 9 बजे से सो रहा है और वो सोता रहा है. वो 9 बजे से सोता रहा है. डैश से रही है और ती रही है. वो सुबह से खाना बना रही है और वो खाना बनाती रही है. डैश से रहे हैं, आते रहे हैं. वो क्रिकेट खेलते रहे हैं और वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं. गॉट इट. डैश मीन्स टाइम. यहाँ आपको टाइम बताया जाता है. सो मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन perfect continuous tenses. So fix this thing in your mind that ing form of verb, ing form
is used in all the continuous tenses, whether it is present continuous or present perfect continuous, past continuous or past perfect continuous, future continuous or future perfect continuous. So छः जो टेंसेज हैं आपके पास, छः टेंसेज कॉन्टीन्यूस टेंसेज, जहाँ भी आपके पास टेंस के साथ कॉन्टीन्यूस आ जाए समझे वहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है. सो मेन फॉर्म यहाँ पे कौन सी यूज़ होती है? आईएनजी फॉर्म. हेल्पिंग वर्ब्स, अब आपको पता है कि इससे पहले आपने परफेक्ट पढ़े हैं. परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब थे? हैज़, हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट में थे. हैड पास्ट परफेक्ट में था. और विल हैव एंड शैल हैव ये फ्यूचर परफेक्ट में थे. सो अभी भी आपने उन्हीं परफेक्ट वाले हेल्पिंग वर्ब्स के साथ सिर्फ बिन लगाना है. उनके साथ क्या लगाना है? बिन लगाना है. ओके, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज़, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ बिन, और वहाँ था हैव, और यहाँ हो जाएगा हैव बिन. सो आपने क्या चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद रखनी है आपके पास? हम इनको फिंगर टिप्स पे याद करवाते हैं. जो छोटी फिंगर है आपके पास, ये है, ये फिंगर है इनडेफिनेट, ये है कॉन्टीन्यूस, ये है परफेक्ट, ये है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. तो सबसे पहले आपने ये जो नकल्स हैं हमारे, ये जो बंद हैं उंगलियों के, इन पे हम याद करते हैं. तो सबसे पहले ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाला नकल है, इस पे आपने क्या याद करना है? डैश से रहा है, ता रहा है. डैश से रही है, ती रही है. डैश से रहे हैं, ते रहे हैं. गॉट इट? आईएनजी फॉर्म. उसके बाद हैज़ बिन, हैव बिन, हैज़ बिन, हैव बिन, आईएनजी फॉर्म. हैज़ बिन, हैव बिन, आईएनजी फॉर्म. गॉट इट? सो क्या आप इस फिंगर टिप पे याद करेंगे? डैश से रहा है, ता रहा है. डैश से रही है, ती रही है. डैश से रहे हैं, ते रहे हैं. हैज़ बिन, हैव बिन, आईएनजी फॉर्म. गॉट इट? अब मैंने आपके लिए दो एग्जांपल्स भी यहाँ पे बनाई हैं. वो पढ़ता रहा है, ही हैज़ बिन रीडिंग. अब देखें यहाँ पे आ रहा है ता रहा, ता, वो पढ़ता रहा है, वो पढ़ता रहा है. यहाँ पे आ रहा है रहा है. गॉट इट? सो ही हैज़ बिन रीडिंग, ही के साथ हैज़ बिन यूज़ होता है. ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किसके साथ हैज़ बिन यूज़ होते हैं, किसके साथ हैव बिन यूज़ होते हैं. ये नेचुरल है. आप फ्लो दें अपनी लैंग्वेज को, आपको खुद पता चल जाएगा. आपने कभी कभी ही हैव बिन नहीं सुना, आपने हमेशा ही हैज़ बिन ही सुना है, तो आपके माइंड में हैज़ बिन ही आएगा. सो वो पढ़ता रहा है, ही हैज़ बिन रीडिंग. वो नहीं पढ़ता रहा है, ही हैज़ नॉट बिन रीडिंग. क्या वो पढ़ता रहा है? हैज़ ही बिन रीडिंग? वो सुबह से पढ़ता रहा, वो सुबह से पढ़ रहा है. अब टाइम मेंशन हो गया. ही हैज़ बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. नेगेटिव का रूल क्या है आपके पास? चाहे जितने हेल्पिंग वर्ब भी हों, आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है. ही हैज़ नॉट बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ ही बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. सो अभी मैं आगे जाके आपको सिंस और फॉर का यूज़ भी बताऊँगा. सो नेक्स्ट वी हैव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. अब हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है. हम देखते हैं कि उर्दू में इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है. हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास उर्दू में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन से होते हैं? सो वो वाले सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं जिनके एंड पे आता है डैश से रहा था और ता रहा था. डैश से रही थी और ती रही थी. डैश से रहे थे और ते रहे थे. गॉट इट? सो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? वही दोबारा वही वाली बात मेमोराइज करनी है आपने कि आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म. ठीक है. और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बिन इनमें यूज़ होते हैं. जिस तरह परफेक्ट में सिर्फ हैड यूज़ होता था, यहाँ साथ बिन यूज़ हो गया, हैड बिन. तो आपके लिए जो आपकी फोर फिंगर है उसका सेकंड नकल है, दूसरा बंद है, जिस पे आपने ये सारी बातें याद करनी है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. डैश से रहा था, ता रहा था. डैश से रही थी, ती रही थी. डैश से रहे थे, ते रहे थे. हैड बिन, आईएनजी. हैड बिन, आईएनजी. हैड बिन, आईएनजी. सो कुछ चीज़ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ इजी है. देन हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं दो. हम खेलते रहे हैं. देखें आगे, सॉरी, खेलते रहे थे. हम खेलते रहे थे और हम सुबह से खेल रहे थे. सो वी हैड बिन प्लेइंग. वी हैड बिन प्लेइंग. ते रहे थे आगे एंड पे ना. और हम सुबह से खेल रहे थे, यहाँ डैश से खेल रहे थे, तो सुबह से खेल रहे थे. टाइम मेंशन हो गया. वी हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. आगे जाके आपको मैं सिंस और फॉर का यूज़ बताता हूँ. नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस.
अब देखें, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या है उर्दू में? डैश से रहा होगा, ता रहा होगा। डैश से रही होगी, ती रही होगी। डैश से रहे होंगे, ते रहे होंगे। गॉट इट? सो मेन फॉर्म इसमें कौन सी यूज़ होती है? आईएनजी फॉर्म। मेन फॉर्म कौन सी यूज़ होती है? आईएनजी फॉर्म। फिर आपने यही बात याद करनी है कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हैं या कॉन्टीन्यूस हैं उन सब में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा है? जिस तरह परफेक्ट में था विल हैव, शैल हैव, यहाँ हो जाएगा विल हैव बिन, शैल हैव बिन। क्लियर? तो आपके पास ये वाला नकल है थर्ड वन। इस पे आप लोग याद करेंगे कि डैश से रहा होगा, ता रहा होगा। डैश से रही होगी, ती रही होगी। डैश से रहे होंगे, ते रहे होंगे। और उसके बाद विल हैव बिन, शैल हैव बिन, आईएनजी। विल हैव बिन, शैल हैव बिन, आईएनजी। आपको बताया हुआ भी है कि विल हैव बिन किसके साथ यूज़ होता है और शैल हैव बिन किसके साथ यूज़ होता है। जहाँ पे आपके पास आई और वी प्रोनाउंस आए, प्रोनाउंस जहाँ पे आपके पास आई और वी हों, वहाँ पे आपने सिर्फ शैल हैव बिन यूज़ करना है, बाकी सब के साथ आपने विल हैव बिन यूज़ करना है। तुम लिखते रहे होगे, यू विल हैव बिन राइटिंग। यू विल हैव बिन राइटिंग। तुम 2 घंटे से लिखते रहे होगे, यू विल हैव बिन राइटिंग फॉर 2 hours। यू विल हैव बिन राइटिंग फॉर 2 hours। आवर्स, ओके। अब हम चलते हैं सिंस और फॉर के यूज़ की तरफ कि हमारे पास सिंस और फॉर का यूज़ क्या है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक दफ़ा फिर मेमोराइज़ करवा देता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। ये मेरे नकल्स को देखना है आपने। डैश से रहा है, ता रहा है। डैश से रही है, ती रही है। डैश से रहे हैं, ते रहे हैं। हैज़ बिन, हैव बिन, आईएनजी। नेक्स्ट, डैश से रहा था, ता रहा था। डैश से रही थी, ती रही थी। डैश से रहे थे, ते रहे थे। हैड बिन, आईएनजी। गॉट इट? नेक्स्ट, थर्ड पे चलते हैं। डैश से रहा होगा, ता रहा होगा। डैश से रही होगी, ती रही होगी। डैश से रहे होंगे, ते रहे होंगे। विल हैव बिन, शैल हैव बिन, आईएनजी। क्लियर? Dear student, now we move towards the use of since and for. So सिंस और फॉर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ छोटी सी बात है आपने याद रखनी है कि पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है ऐसा टाइम जिसको आप पॉइंट कर सकें, जिसको आप ऐसे उंगली रख के, जिसको आप ऐसे पेन रख के पॉइंट कर सकें। ये है पॉइंट ऑफ टाइम। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन मतलब होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान का फासला। 2 पॉइंट्स के दरमियान का फासला। तो जब आपके पास एक पॉइंट ना हो तो वो ड्यूरेशन बन जाता है। और जब एक पॉइंट होगा तो उसके लिए सिंस यूज़ करेंगे। जब एक पॉइंट से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए आप फॉर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई से 1947, 1973, 2005, 2020। So I have made 4 points. I have made 4 points. अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि he has been doing job in this institute dash 1947, तो आप सिंस यूज़ करेंगे या फॉर? अगर आप 1947 को पॉइंट कर सकते हैं ऐसे तो फिर सिंस यूज़ होगा। अगर पॉइंट नहीं कर सकते तो फिर फॉर यूज़ होगा। तो आप पॉइंट कर सकते हैं, यस आई कैन पॉइंट 1947। ये है 1947। मैं कैलेंडर पे 1947, 1948, 1949, 1836 सब सालों को, हर एक ईयर को, हर सदी को मैं पॉइंट कर सकता हूँ। तो पॉइंट कर सकता हूँ, सो सिंस यूज़ होगा। अगर मैं कहूँ वो 10 सालों से इस इदारे में जॉब कर रहा है, he has been doing job in this institute for 10 years। अब 10 सालों की बात है, 10 सालों को मैं पॉइंट कर सकता हूँ। 10 साल एक पॉइंट नहीं बनता ना। मैं अगर कहता हूँ 2001, 2002, 2003, इस तरह 2010 तक मैं चलता हूँ, तो क्या मैं 10 साल एक पॉइंट है? नो, एक पॉइंट नहीं है ये ड्यूरेशन है। यानी ये 2 पॉइंट्स के दरमियानी फासले की बात हो रही है, ये ड्यूरेशन है, तो उसके लिए फॉर। अगर आप किसी भी टाइम को पॉइंट कर सकते हैं तो वो आपके पास सेंस होगा, पॉइंट नहीं कर सकते तो वो फॉर होगा। 1947 आई कैन पॉइंट इट, 1973 आई कैन पॉइंट इट, 2005 आई कैन पॉइंट इट, 2020 आई कैन पॉइंट इट। अगर मैं कहूँ 10 ईयर्स, 20 ईयर, 30 ईयर्स, देन आई कांट पॉइंट। ओके, फिर मैं इनको पॉइंट नहीं कर सकता, फिर वो ड्यूरेशन बन जाता है। 2
पॉइंट्स के दरमियानी फासले को ड्यूरेशन कहते हैं, तो फिर उसके लिए फॉर यूज़ होगा। जहाँ पॉइंट कर सकें वो सिंस, जहाँ पॉइंट ना कर सकें वो फॉर। मैं कहता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, उसको मैं पॉइंट कर सकता हूँ, यस पॉइंट कर सकता हूँ, सो सिंस। अगर मैं कहूँ 4, 8, 10, 10 साल, 8 साल, ठीक है, उसको मैं कहता हूँ फर्स्ट पोजीशन, पॉइंट कर सकता हूँ, सेकंड पोजीशन पॉइंट कर सकता हूँ, थर्ड पोजीशन पॉइंट कर सकता हूँ, फोर्थ पोजीशन पॉइंट कर सकता हूँ, यस आई कैन पॉइंट इट। अगर मैं कहूँ 4 पोजीशंस, 4 पोजीशनें, तो मैं उनको पॉइंट कर सकता हूँ, नो, वो 2 पॉइंट्स बन जाते हैं, ड्यूरेशन बन जाता है, सो वो नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट, जनवरी, फेबररी, मार्च, आई कैन पॉइंट जनवरी, आई कैन पॉइंट फेबररी, आई कैन पॉइंट मार्च। अगर मैं कहूँ 4 महीनों से, अब नहीं पॉइंट कर सकता, अब मैं नहीं पॉइंट कर सकता। वो पहले 4 महीने, वो दरमियान वाले 4 महीने, कोई भी। अगर मैं कहूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैं फिर भी पॉइंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं 4 महीनों को एक साथ पॉइंट नहीं कर सकता, उस वो ड्यूरेशन बन जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मैं कहता हूँ 2 o'clock, 5 o'clock, मैं पॉइंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ 2 hours, 10 minutes, नहीं पॉइंट कर सकता। ये 2 पॉइंट्स बनते हैं हमारे पास। क्लियर। सो जहाँ आप पॉइंट कर सकें दैट इज सिंस, और जहाँ पॉइंट नहीं कर सकते वहाँ उसके लिए फॉर। ओके, वी विल डिस्कस इन डिटेल इट इन आवर क्लास एज वेल। ओके, हम इसको डिटेल से अपनी क्लास में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जिसको आप पॉइंट कर सकते हैं वहाँ पे सिंस यूज़ होगा, जिसको आप पॉइंट नहीं कर सकते वहाँ पे फॉर यूज़ होगा। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ भी सिंस और फॉर को थोड़ा क्लियर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें, हम 1 घंटे से खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour। हम 1 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, हैव के बाद नॉट लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाने। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, हैव को स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर प्लेइंग, और फिर आगे होल सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पे आप देखें मैंने यूज़ किया फॉर, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, फॉर 1 hour। अब मैं कहता हूँ 2 बजे से, 4 बजे से, मैं घड़ी में उसको पॉइंट कर सकता हूँ, ये 2 बजे हैं, ये 4 बजे हैं, लेकिन 1 घंटे से, 1 घंटा जो है वो ड्यूरेशन है 2 से 3 बजे के दरमियान का, ये ड्यूरेशन है, क्योंकि 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला है ये। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किए, फॉर यूज़ किए। अगर इसी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करें, हम 1 घंटे से खेल रहे थे, वी हैड बिन प्लेइंग फॉर 1 hour। सो ऊपर हैव बिन था, यहाँ हैड बिन हो जाएगा। हम 1 घंटे से खेल रहे होंगे, वी शैल हैव बिन प्लेइंग फॉर 1 hour, वी शैल हैव बिन प्लेइंग फॉर 1 hour। अब उससे आगे चलते हैं। वो 2015 से इस स्कूल में पढ़ता रहा है। He has been reading in this school since 2015। अगर यहाँ मैं साल खड़े करूँ 2015, 2016, 2017, 2018, अगर आपको मैं कहूँ कि 2018 को पॉइंट आउट करें तो आप कर सकते हैं ना, ये है। 2017 को पॉइंट आउट करें किधर है, ये है। 2016 को ये है, 2015 को ये है। ओके, सो इस तरह हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। एक ही पॉइंट हमारे पास बनते हैं, उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ 4 सालों से, अब वो एक पॉइंट तो ना बना, 2015 से 2018 तक ये 4 साल बनते हैं, तो फिर वो 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला बन जाता है, उसको ड्यूरेशन कहते हैं। सो वो 2015 से स्कूल में पढ़ता रहा है। ही हैड बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015। वो 2015 से इस स्कूल में पढ़ता रहा था। ही हैड बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015। वो 2015 से स्कूल में पढ़ता रहा होगा। ही विल हैव बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015। सो आई होप आपको सिंस और फॉर का यूज़ भी क्लियर हुआ होगा और बाकी का भी क्लियर हुआ होगा। आपके लिए मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करता हूँ। डैश से रहा है, ता रहा है, डैश से रही है, ती रही है, डैश से रहे हैं, ते रहे हैं, हैज़ बिन, हैव बिन, ING। डैश से रहा था, ता रहा था, डैश से रही थी, ती रही थी, डैश से रहे थे, ते रहे थे, हैड बिन, ING। डैश से रहा होगा, ता रहा होगा, डैश से रही होगी, ती रही होगी, डैश से रहे होंगे, ते रहे होंगे, विल हैव बिन, शैल हैव बिन, ING। क्लियर।
उसके बाद हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी की इसकी। सेंस और फॉर का यूज़ भी मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सेंस यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप फॉर यूज़ करते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स होमवर्क, दैट व्हाट्स योर होमवर्क टुडे। सो आप लोगों का होमवर्क ये है कि ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, अली सुबह से खेल रहा है, मैं 2 घंटों से ख़त लिख रहा हूँ, मेरी बहन 2 बजे से कपड़े धो रही है। सबसे पहले आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आपने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी चेंज करना है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी चेंज करना है। तो टोटल ये 3 हो जाएंगे। फिर उनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने, 9 सेंटेंसेस आपने एक से बनाने हैं। ये प्रेजेंट में है, इसको पहले पास्ट में चेंज करना है, फिर फ्यूचर में, और फिर उनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनाना है। नेक्स्ट, वो 2 घंटों से मैं 2 घंटों से ख़त लिख रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, आपने इसको पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करने और फिर उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना है। 9 ये हो जाएंगे। फिर मेरी बहन 2 बजे से कपड़े धो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी चेंज करने और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, और फिर उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना है। 9 ये हो जाएंगे। सो 9 9 9, ये इन टोटल 27 सेंटेंसेस बन जाएंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके, so I hope you are clear with the lecture. If you have any problem, you can contact me. Thank you for watching. Thank you.